अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। G6 तर्जमा क्लास में आप सबको फिर से एक दफ़ा खुश आमदीद कहती हूँ। क्लास का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान करीम से। जी एडमिन प्लीज़ माइक दीजिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض وما كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل أن يعد الظالمون بعدهم بعدا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جاهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। तर्जमा। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की मदद से धुतकारे हुए शैतान से। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है।
وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، بس جو انکار کرے اس کا انکار اسی پر پڑے گا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک کسی چیز میں نہیں بڑھاتا۔ تو پوچھ، کیا تم نے اپنے وہ شریک دیکھے ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، یا ان کے لیے آسمانوں میں سے شراکت ہے، یا کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی تھی؟ بس وہ اس کی بنا پر ایک روشن دلیل پر قائم ہے۔ نہیں، بلکہ ظالموں میں سے ان کے بعض دوسروں سے محض دھوکہ کا وعدہ کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وہ ٹل سکیں، اور اگر وہ دونوں ٹل گئے تو اس کے بعد کوئی نہیں جو انہیں پھر تھام لے۔ یقیناً اللہ وہ بہت بردبار، بہت بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ضرور وہ ایک امت سے، تھوڑا سا اوپر کیجیے۔ جی ایک جی میں مکمل کر دیتی ہوں ترجمہ۔ جی پلیز۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ضرور وہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پا جائیں گے۔ بس جب ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو انہیں نفرت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا سکا۔ ترجمۃ القرآن حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب ہم اپنے کلاس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم سورہ فاتر کا مختصر ترجمہ اور تفسیری مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم آیات 40 تا 43 کا مختصر ترجمہ اور تفسیری مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کے جو مختصراً اصولوں کا ہم ایک کلاس میں سلسلہ جاری ہے، اس میں ہم نے پچھلی کلاس میں شخصی ضمائر کے بارے میں جانا تھا، اور یہی شخصی ضمائر کا ایک سلسلہ آج جو اگلا حصہ ہے وہ آج کی کلاس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پچھلی بار کی کلاس میں ہم نے ضمائر منفصلہ کے بارے میں جانا تھا، آج کی کلاس میں ضمائر متصلہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شخصی ضمائر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے جو ہیں ضمائر متصلہ، پچھلے ضمائر منفصلہ کا سبق جو تھا وہ آج میں دہراؤں گی نہیں، کیونکہ ہم نے اس کی 2 دفعہ دہرائی کر لی ہے۔ تو ضمائر متصلہ میں ضمائر منفصلہ کی طرح ہی 12 الفاظ کا ہم نے تعارف استعمال کرنا ہے۔ 12 الفاظ ہم نے منفصلہ میں سیکھے اور شخصی ضمائر کے حوالے سے، اور آج ضمائر متصلہ میں ہم نے بھی 12 الفاظ جو ہیں وہ سیکھنے ہیں، جو شخصی اسما کی جگہ مختلف جملوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا ہیں تو دیکھتے ہیں اس کو۔ تو ضمائر منفصلہ جو ہیں وہ کیا ہے، ان میں ایک فرق جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو متصلہ ہیں، ضمائر متصلہ شخصی ضمائر کے حوالے سے جو 12 الفاظ ہم نے سیکھے پچھلی کلاس میں، اس میں ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ اسما کے پہلے آتے ہیں، اسموں کے پہلے آتے ہیں، اور جو یہ منفصلہ ہیں، یہ 12 جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ، تو یہ اسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آخر میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نشانی ہے منفصلہ اور متصلہ کی یاد رکھنے کی۔ تو یہ دیکھیے کہ پہلا جو ہم نے سیکھنا ہے
यही वही सिलसिला है जैसे हमने पिछली दफा गायब मुज़क्कर और गायब मुअन्नस और फिर मुखातिब मुज़क्कर मुखातिब मुअन्नस और मुतकल्लिम के हवाले से सीखा था। तो कुछ उसी तरह का मिलता जुलता सिलसिला इस सबक में भी जारी हो सारी है। तो देखते हैं कि ज़मायर मुतस्सला जिनको हम अटैच्ड प्रोनाउंस कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या हैं। तो इसमें मुत्तसला के हवाले से जो है आप याद रखें कि पहला लफ्ज़ जैसे कि आपको भी यहाँ नज़र आ रहा होगा, और ये बहुत ही कुरान करीम के टेक्स्ट में आपको बेशुमार दफ़ा ये ज़मीर नज़र आएगी, हु की ज़मीर, हु। ये किसके लिए बोली जाती है? ये मुज़क्कर गायब के लिए। तो हमने पिछली दफा भी सीखा था कि मुज़क्कर गायब, मुज़क्कर मुखातिब या हाजिर, और फिर मुज़क्कर मुतकल्लम, मुअन्नस गायब, मुअन्नस हाजिर या मुखातिब, एंड मुअन्नस मुतकल्लम। इसी हवाले से आज भी हम जो शख्सी ज़मायर हैं जिनमें मुनफसिला हैं, जो कि जुड़े हुए होते हैं, इसम के आखिर में आते हैं। जुड़े हुए में से मेरी मुराद है कि इसका उनका रस्मुल ख़त ऐसा होता है कि वो लिखे हुए इस तरह से होते हैं कि इस्म पहले आता है और जमीर जमायर मुनफसिला जो है वो उसके साथ एंड में आते हैं उस जमीर के। जैसे कि आप यहाँ देखें रस्मुल खत में पहली जो जमीर हम सीखेंगे शख्सी जमायर के हवाले से जो मुजक्कर गायब की जमीर है वो है हु। ठीक है, हु। हु यानी हा और उसके ऊपर उल्टी जो इन्वर्टेड दम्मा जिसको हम कहते हैं वो है। और इसको अक्सर ऐसे भी लिखा जाता है कि कभी ये ही जो ज़मीर है जो हम मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होती है ये कभी ही भी होगी और हो भी होगी। ठीक है, इस तरह से भी लिखी हुई आपको रस्मुल खत में नजर आएगी। और इसका क्या मतलब है, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? ये मुज़क्कर गायब एक वाहिद के लिए, एक मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होती है। अंग्रेजी ज़बान में जो हम कहते हैं ना हिज हर, इसके लिए ये ज़मीर इस्तेमाल होती है। अंग्रेजी ज़बान में अगर आप इसका तर्जुमा करेंगे तो जो ये ज़मीर है हु की ज़मीर, इसकी ज़मीर बनती है अंग्रेजी ज़बान में इसका तर्जुमा बनता है हिज, और उर्दू में उसकी। तो किताबुन इस्म है। जब आपको पता है उसूल है जो हमने सीखे हुए हैं तरतील में तजवीद में कि किताबुन है, जब इसके आगे कुछ लगेगा तो फिर उसकी जो दम्मा तैन की जमीन है ज़मीर है वो गिर जाती है और ये बनती है किताबु हु। हु जो है ये ज़मीर है किसकी? मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुतसल्ला है। और इसकी जो तर्जुमा हम करेंगे किताब यानी किताबुन, किताब। हु का मतलब है उसकी, यानी किसके साथ जो इसका ताल्लुक है इस किताब का किसके साथ है? एक मुज़क्कर गायब के साथ है। आगे अगर इसी ज़मायर मुतसल्ला जो हैं ये फेल के साथ भी आते हैं और हर्फ के साथ भी आते हैं, प्रेपोजिशन या पार्टिकल जिसको आप कहते हैं वो उसके साथ भी आते हैं। तो अगर आप इसको फेल के साथ लिखा हुआ देखें तो एक मिसाल यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी। कल्लमा, कल्लमा फेल है। कल्लमा उसने बात की, हु की जमीर उससे। ठीक है, उससे, क्योंकि याद रखें ये गायब मुजक्कर है, हाजिर नहीं है, मुखातिब नहीं है और ना मुतकल्लम है। उससे बईद की बात हो रही है, दूर की बात हो रही है, जो गायब है, जो आपकी नजरों से पोशीदा है। तो हम उर्दू जबान में भी कहते हैं वो, उस, ये, ऐसे, मतलब वो, यानी जैसे कि हमने वो का सीखा, हुआ का सीखा हमने सीखा जब मुजक्कर गायब के लिए होता है और जमायर मुनफसिला में है। ये भी वही है, वो हुआ है। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, हुआ, हुआ जो है तो यहाँ पे सिर्फ हु है, हु। और इसका तर्जुमा क्या है? उसकी, हिज बुक। जमीर मर्द के लिए जो मुजक्कर गायब के लिए जमीर मुतसल्ला इस्तेमाल होगी हु, और वही मुजक्कर गायब के लिए जब जमीर मुनफसिला इस्तेमाल होती है तो हुआ। हुआ का तर्जुमा हम उर्दू में कहते हैं वो। और जब हम किसी मर्द की बात करें उर्दू जबान में और तो हम क्या जमीर इस्तेमाल करेंगे? हु। तो उस मर्द की, उसका तर्जुमा किताबुहु, उसकी किताब। कल्लमा उसने बात की, हु उससे। तो ये वो, तुम, मैं, उसका, इसका, औरत के बारे में ये ज़मायर हैं जो कि हमने, जिसके बारे में हमने जानने की और समझने की कोशिश करनी है। और इससे आपको तर्जमा करने में और समझने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद आप देखें कि यही ज़मीर जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हु जो है ज़मीर मुतसल्ला मुज़क्कर गायब के लिए, ये कभी हु भी लिखी इस तरह भी लिखी जाती है और ही भी लिखी जाती है, लेकिन मर्ज जो इसका मीनिंग है, जो इसका तर्जुमा है वही होता है। यहाँ आप देख लीजिए किताबू
और उसके साथ हु जुड़ा हुआ है, हिज बुक। किताबुन एक किताब, किताबुहु उसकी किताब। कल्लमा, कल्लमा के साथ आप हु की जमीर जोड़ते हैं। कल्लमा उसने बात की, हु उससे, कल्लमा हु। तो ये मरक्कब अल्फाज हैं, जुड़े हुए हैं। और ऐसे मरक्कब अल्फाज आपको कुरान करीम में बेशुमार मिलेंगे। दूसरा, हर्फ के साथ जब ये जमीर आएगी तो कैसी होगी? वह हर्फ क्या है? इला। preposition क्या है? इला। और इसके साथ जो हु की जमीर है ये ही में तब्दील होगी है। ये कुछ तराकीब हैं, कुछ वजूहात हैं, उसकी वजह से होती है। तो इला और हु, ये क्योंकि जबान पे भारी हैं, जबान पे सकील हैं, इसलिए उसको हम, इस हु को हम कसरा के साथ पढ़ते हैं जब हम हर्फ के साथ है। ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, खास एग्जाम्पल है आपके लिए इसी की है कि ही का इस्तेमाल जब कुरान करीम में होता है तो मतलब उसका वही है। लेकिन क्योंकि इला और हु जबान पे सकील हैं, वो उसमें फ्लुएंसी नहीं आती, उसमें आवाज सुनने में इतनी खूबसूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसको, हु को मकसूर कर देते हैं, कसरा। तो हम इसको पढ़ते हैं इलैही, उस मुजक्कर की तरफ, या अंग्रेजी में जो हम कहते हैं टू हिम। आगे देखिए, इसी के हवाले से ज़मायर मुतसल्ला के लिए गायब मुजक्कर या इस जो है मुजक्कर इस्म के साथ या फेल के साथ या हर्फ के साथ कैसे होगा। पहले हमने मुजक्कर गायब वाहिद की बात की। अगर हम जैसे वही सिलसिला है, वही तरीका है, वही पैटर्न है जो हमने मुनफसिला में सीखी, उसमें हमने सीखा था हुआ, हुमा, हुम, मुजक्कर गायब के लिए। और यहाँ देखें वही है, सिर्फ फर्क क्या है? वो हु है मुजक्कर मुत्तसला में, पहला जो मुजक्कर वाहिद गायब के लिए इस्तेमाल है, हु। फिर वही हुमा जो मुजक्कर, सॉरी, जुमायर मुनफसला में दो मर्द या दो औरतों के लिए इस्तेमाल हुआ है, हुमा, वही सीगा इस्तेमाल हुआ है। तर्जमा आप देखिए कैसे बनेगा। हुमा का क्या है? ये हुमा का जो सीगा इस्तेमाल होता है जुमायर मुतसला, ये दो मर्दों और दो औरतों के लिए एक ही जमीर इस्तेमाल होती है। अब आप यहाँ इससे क्या कहूंगी मैं कि मिसाल से समझें कि किताबू, किताबुन से किताबू, क्योंकि इसकी दमा की तनवीन में से एक दमा जो है वो गिर जाएगी क्योंकि हमने इसको मिलाना है दूसरे जमीर के साथ। तो या किसी भी हर्फ के साथ, तो ये एक उसूल है जो हम तजवीद की क्लासों में सीख चुके हैं। तो किताबुन से किताबू, क्योंकि हुमा लगेगा आगे जमीर, तो किताबू हुमा, किताबू किताब, हुमा उन दोनों की। हुमा जब आप देखेंगे इस तरह का लफ्ज आपको कंपाउंड वर्ड मिलता है तो इसका तर्जुमा किताबू हुमा, उन दोनों की किताब। उन किसकी? जो बईद हैं, दूर हैं, नजरों से ओझल हैं। ये मर्द भी दो हो सकते हैं, औरतें भी। इसे तर्जुमा यहाँ लिखा हुआ है देयर बुक, यानी मेल ओ फीमेल। तो उसके बाद कल्लमा हुमा, वही लफ्ज कल्लमा, उसकी मजीद एग्जाम्पल्स हम बढ़ा के समझा रहे हैं आपको। तो यानी कि उन्हीं उसी लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो कल्लमा उसने बात की, हुमा दोनों से, यानी वो दो मर्द जो, और या दो औरतें हो सकती हैं। ही स्पोक टू बोथ, हुमा बोथ, वो दो औरतें भी हो सकती हैं और दो मर्द। और जमीर क्या है? हुमा या हिमा भी होती है कभी कभी, हिमा, किताबी हिमा। ठीक है। तो किताब, हुमा और हिमा माना नहीं बदलेगा। आपको कभी हुमा लिखा नजर आएगा कुरान करीम में, हिमा नजर आएगा, लेकिन उसका क्या मतलब है? दो, दो मर्द या दो औरतें। और ये इनका एक ताल्लुक जो है वो इस्म के साथ, यहाँ किताब के बारे में, उन दोनों की किताब, फेल के साथ, उन दोनों से बात की, या हर्फ के साथ, preposition के साथ, पार्टिकल के साथ, इलैहिमा, इला तरफ, हिमा दोनों की, उन दोनों की तरफ, इलाहिमा दोनों की तरफ, टू बोथ ऑफ देम या टू देम बोथ, जो भी आपको आसान लगे समझने में। तो इस तरह से इसकी शक्ल होती है, इला और उसके साथ हिमा। ये फिर जबान पे सकील है, हैवी है, फ्लुएंसी नहीं आती, इसलिए यहाँ कसरा लगी, इलाहिमा। आगे देखिए, हुम और हिम, ये क्या है? अब हमने यहाँ दो के लिए सीख लिया। तो यही जमीर जो हम मुनफसिला में इस्तेमाल करते हैं मुजक्कर गायब के लिए, यानी मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब, यानी तीन जो हैं, कम से कम तीन मर्दों के बारे में जब बात होती है तो हम उसके लिए हुम का ही सीगा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये याद रखें कि जमायर मुनफसिला जो हैं वो पहले आते हैं। जैसे लफ्ज़ था हुम मुमिनूना, वो सब ईमान वाले,
यानी वो सब ईमान वाले, कम से कम 3 मर्द ईमान वाले, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ये क्या है, ये आखिर में आती है, इसलिए इसको हम कहते हैं ज़मायर मुतसिला। और इसमें देखिए इसका क्या मतलब है, जब आप ये हुम, या ये कभी कभी कसरा के साथ हिम लिखी हुई आएगी, तो इसका क्या मतलब होगा, उन सब मर्दों का, टू ऑल ऑफ देम और ऑफ ऑल ऑफ देम, ये अंग्रेजी में इसका तर्जमा बनेगा। किताबु हुम, किताबु किताब, हुम उन सब की, उन सब की किताब, यानी वो सब जो है उसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। किताबु हुम, ये इस तरह से इसको जोड़ के लिखा जाता है। वाहिद जो है, एक वाहिद जो इस्म है किताब, उसकी असली हालत है किताबुन, तनवीन की एक दम्मा गिरेगी, और जब इसको हम जोड़ेंगे, चाहे हम वो मुजक्कर गायब मुजक्कर वाहिद के साथ या दो के साथ, तस्निया के साथ या जमा के साथ जोड़ेंगे, तो उसकी एक तनवीन गिर जाएगी। कल्लमा हुमा, कल्लमा हुम, कल्लमा हुम, वही इस्तेमाल हो रहा है, उसने बात की उन सब से, ही स्पोक टू ऑल। हुम का तर्जुमा अंग्रेजी में ऑल, सब से, ठीक है। इलैहिम, इला, और हुम है ये यहाँ पे, हिम, इला की वजह से यहाँ पे ये कसरा ले लेगा, और उन सब की तरफ से, टू ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ये देखें, उन सब की तरफ से, टू ऑल ऑफ देम, और ये कैसे हैं, दोनों दो अल्फाज जोड़ के कैसे बनाए गए, इला और हुम को, इला की वजह से यहाँ कसरा है, इलैहिम। इसको ज्यादा आसान करने के लिए, सुनने के लिए, अच्छे के लिए, ये अरबी जबान का, अहले जबान का ये कायदा है कि वो यहाँ इसको मकसूर कर देते हैं, ठीक है, इलैहिम। आगे हम चलते हैं शख्सी ज़मायर के हवाले से, पर्सनल प्रोनाउन। मैं दरख्वास्त करूंगी एडमिन को कि किसी एक मुतालिमा को माइक दे दें, ताकि हम एक एक दो अल्फाज की मुख्तसरन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम क्विक जल्दी से अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे। तो इनमें से आप कोई एक मुझे अगर, जी जी एडमिन माइक दे दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी आप, 60008। जी लहू, लहू का आप क्या तर्जुमा करेंगे, और ये हु जो है, जमीर जो है, जमीर मुतसला, इसकी क्या आप तर्जुमा क्या करेंगी, ला का क्या मतलब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आपको आवाज आ रही मेरी। जी जी जी। जी, ला के लिए हु उस। ला लिए हु, उस वाहिद मुजक्कर के लिए, जी लहू उसके लिए। दीनी हिम, दीनी का तर्जुमा क्या होगा, दीन। जी हिम किस चीज की तरफ इशारा करता है, ये जमीर है। जी, ये जमा मुज़क्कर के लिए हिम उनकी। ठीक है, दीनिहिम उनके दीन, ठीक है ना। जी जी इस तरह होगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए, माशाल्लाह काफी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, जजाकुमुल्लाह। जिन्होंने अपनी एक्सरसाइज जो मैंने पिछली दी थी उसको कंप्लीट किया है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी इसको भी आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, और मेरे साथ फिर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप में, और इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको फिर उसका रिजल्ट आपको बता दूंगी। अभी तक जो देखने में आया है, तो माशाल्लाह आप सारों की बेहतरीन कोशिश है, और बड़ी अच्छी से आप तरीके से आपने उसको तर्जुमा करके बयान किया है, और बज़ाहिर तो लगा कि सबको सबक की अच्छी तरह समझ आ गई है। तो अगर कोई कहीं पे कोई कमी नजर आई, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में उसको फिर मैं कवर करवा दूंगी। आगे चलते हैं, सबक का दूसरा हिस्सा जो है ज़मायर मुतसल्ला का ही, अब मुअन्नस के हवाले से देखें। हु मर्द के लिए, एक वाहिद मुजक्कर के लिए मुतसल्ला हु, और औरत के लिए हा। जैसे आसान जबान है, आसानी से याद रखें। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा, अनहा कहते हैं, क्यों कहते हैं, हा एक वाहिद औरत के लिए, गायब मुअन्नस के लिए, ठीक है। हा कर रजी अल्लाह ताला अनहु, हु हु मर्द के लिए, और हा औरत के लिए, इससे याद रखिएगा। इसम के साथ देखें, किताबु हा, जब हा आ जाएगा, किताबु हु, उस मर्द की किताब, उस औरत की किताब। हा से आपने क्या तर्जुमा करना है, आपको फौरन याद आना चाहिए कि हा की जमीर जो है वो किसी मुअन्नस की तरफ है, गायब मुअन्नस की तरफ फिर रही है। कल्लमा हा, कल्लमा उसने बात की, हा उससे, ही स्पोक टू हर एक वाहिद मुअन्नस औरत से बात की, गायब मुअन्नस हर्फ के साथ, इलेहा उसकी तरफ, किसकी तरफ, एक औरत की तरफ।
हुमा, फिर वही सीगा आएगा किताबु हुमा, किताबु हुमा देख लें, जो मर्द और औरत, ज़मायर मुतसल्ला और मुनफसिला दोनों में ज़मीर जो तस्निया की ज़मीर है वो दो के लिए हुमा है। किताबु हुमा, उन दोनों की किताब। कल्लमा, उसने बात की, हुमा, उन दोनों से, किन दोनों से, वो औरतें दो हो सकती हैं, वो दो मर्द भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो हैं ये हमने याद रखनी। इलैहिमा, दोनों औरतों की तरफ, हिमा, हुमा, जैसे हुमा ये ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, ये कसरा भी ले सकता है लेकिन तर्जमे में कोई फर्क नहीं आएगा। आगे देख लें, ज़मायर मुतसल्ला में जब हमने गायब मुअन्नस की बात करनी है और वो होगी कम से कम तीन, यानी जमा गायब मुअन्नस की बात होगी, इस्म के साथ क्या लगेगा, फेल के साथ और हर्फ के साथ, वही हुन्ना। और हुन्ना का लफ्ज आपने पहले सीख लिया है, जो हमने ज़मायर मुनफसला में सीखा था। तो कैसे लगेगा, किताबु हुन्ना, उन सब की किताब, किताबु उन सब की, किताबु किताबुन या किताबु किताब, हुन्ना उन सब की। तो ये एक किसी का एक ताल्लुक जो है, इस्म का ताल्लुक जमीर से जो है वो बयान किया जाता है। कल्लमा हुन्ना, उसने बात की उन सब से, इलैहिन्ना, सब औरतों की तरफ, यानी हिन्ना ये आपको बता रहा है कि ये तीन, कम से कम तीन औरतों की बात हो रही है। आगे फिर यहाँ पे देख लीजिए कि ये एक, फिर मैंने एक एक्सरसाइज आप मुतालिमात के लिए तैयार की है और आपसे गुजारिश करूंगी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वक्त की कमी की वजह से हम इसको अभी नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आप अल्फाज पे गौर करें, जीनता हुन्ना, जीनता हुन्ना, उनकी जीनत, यानी किन की जीनत, औरतों की जीनत, ठीक है। औलादा हुन्ना, उनकी औलाद, किनकी औलाद, औरतों की औलाद। औलादा ऐसा उर्दू का लफ्ज है जो हम पढ़ते हैं, हुन्ना यानी औरतों की बात हो रही है, तो बहुत आसान हो जाता है तर्जमा करना या समझना, ठीक है। ऐदी हिन्ना, उन ऐदी, यदुन एक हाथ, ऐदी उसको जमा है, ऐदी हिन्ना उन औरतों के हाथ, अर्जुली हिन्ना उनके पाँव, उन औरतों के पाँव, निसाई हिन्ना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये ऐसे अल्फाज या कुरानियाँ हैं जो बार बार कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं। तो अगर आप इन ज़मायर को अच्छी तरह सीख लें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको तर्जमा समझने में और करने में बहुत आसानी होगी। आज का सबक जो है शुरू करते हैं। तो ये आयत जो थी हमारी पिछली 37 आयत थी, इसका तर्जुमा था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा इस आयत का था, वल्लजीना कफरू लहुम नारु जहन्नम ला युक़दा अलैहिम फयमूतू फयमूतू वला युखफ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा कज़ालिका नजज़ी कुल्ला कफूर। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है उन्हें जहन्नुम की आग जलाएगी, ना तो उन पर मौत का फैसला सादिर हो, ना तो उन पर मौत का फैसला सादिर होगा कि वो मर जाएं, और ना जहन्नम के अजाब में उनकी खातिर कोई कमी की जाएगी। हम हर नाशुक्र के साथ ऐसा ही मामला किया करते हैं। तो ये कुफार की बात हो रही है, इसलिए इस आयत को बयान करना ज़रूरी था कि इसके अगली आयत के साथ इसका ताल्लुक है। अगली आयत है आयत 38, वहुम यस्तरिखूना फीहा और रब्बना। अब यहाँ देखें, फीहा ज़मीर है, इसमें, उसमें, ठीक है, और वो उसमें चीख रहे होंगे, फीहा उसमें, किसमें, जहन्नुम में। और जहन्नम जो है ये हम सीख चुके हैं कि जहन्नुम जो है वो मुअन्नस है, ठीक है, इसलिए यहाँ सीगा भी मुअन्नस का इस्तेमाल हुआ है। तो अब आपको थोड़ा सा कुछ एक समझ आ रहा होगा कि जो इनको मुअन्नस और मुज़क्कर का जो कॉन्सेप्ट है अरबी ज़बान में वो किस लिए है। रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर। तो इसका ये अभी हम देखते हैं बा मुहावरा तर्जुमा, उसको भी मैं छोड़ती हूँ, इसके आयत को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो वहुम यस्तरिखूना फीहा, ये देखें ये ज़मीर है, यहाँ पे मुअन्नस गायब की ज़मीर है, ज़मीर जो है मुतसला, और वो उसमें चीख रहे होंगे, वाह, और हुम वो, यस्तरिखूना वो चीखते हैं, वाह नून का यहाँ देखें ये जो है ये जमा सालिम की यहाँ मिसाल है, ठीक है। और वो उसमें चीख, और वो चीखते हैं इसमें, बा तर्जुमा बा मुहावरा तर्जुमा जो इसका बनेगा, और वो उस जहन्नुम में चिल्लाएंगे। हजरत खलीफतुल मसीह राबे ने इसका तर्जुमा किया, वो और उसमें चीख रहे होंगे, हजरत खलीफतुल मसीह सानी कहते हैं, और वो उस जहन्नम को ब्रैकेट में डाला है में चिल्लाएंगे।
ٹھیک ہے، اگلا حصہ دیکھیں آیت کا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نہ ہمیں، اخرج تو نکال، اخرجنا تو ہمیں نکال، نہ ہم، عمل ہم عمل کریں، نہ عمل ہم عمل کریں، صالحن نیک، غیرہ سوائے یا سوا، غیر الذی وہ جو، کن تھے، نہ ہم، کننا ہم تھے، نعملو نہ ہم، عملو ہم عمل کرتے۔ تو اس کا دیکھیں با محاورہ ترجمہ کیا بنتا ہے، اے ہمارے رب ہم کو اس جہنم سے نکال دے تو ہم مومنوں کی طرح نیک کام کریں گے، ان سے مختلف جو ہم پہلی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ تو بریکٹس میں الفاظ کو ڈالا جاتا ہے، جیسے کہ یہ تفسیر صغیر سے میں نے ٹرانسلیشن لیا ہے، تاکہ ایک میننگ فل جو ہے سینٹینس بن سکے۔ آگے دیکھیے اس کا آیت کا اگلا حصہ ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا وا اور لم نہیں، نعمر نو ہم نے، امر عمر دی، کم یہ کم کا صیغہ اگلی کلاس میں آپ کو سمجھا دوں گی، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی، ما جو یتذکرو، یا یہ ہم سمجھ چکے ہیں، یا فتح کے ساتھ، وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، یتذکرو فیہی، دیکھیں یہاں پہ فیہی، یہ فیہی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں، من جو تذکرہ اس نے نصیحت حاصل کی، وا اور جاءکم، اب یہ کم کا صیغہ یہ بھی جمع کا صیغہ، یہ اگلی کلاس میں سمجھیں گے، وجاءکم اور وہ تمہارے پاس آیا، النذیر ڈرانے والا۔ اس کا دیکھیں با محاورہ ترجمہ، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے کے خواہش مند نصیحت حاصل کر لیتا، نصیحت حاصل کرنے کا خواہش مند نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ہوشیار کرنے والے بھی تو آئے تھے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، پس ذوقوا تم چکھو، فما پس نہیں، للظالمین ظلم کرنے والوں کے لیے، من نصیر کوئی مددگار، سے مددگار۔ تو اس کا بعض محاورہ جو ترجمہ ہے، پس چکھو اپنے ظلم کا بدلہ اور ظلم کرنے والوں کے حق میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے، ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، ان یقیناً اللہ ہی عالم جاننے والا، غیب السماوات غیب آسمان کی جمع، سما کی جمع ہے السماوات، والارضی اور زمین، انہو دیکھیں یہاں ضمیر ہے، یہ انہو، ان یقیناً، یہ ہو کی ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف پھرتی، انہو یقیناً وہ، علیم خوب جاننے والا۔ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کے لیے ضمیر جو ہے استعمال ہوتی ہے وہ مذکر کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، گو کہ ہم یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نہ مؤنث ہے، نہ مذکر ہے، نہ میل ہے یا فیمیل ہے، لیکن جو استعمال ہوتی ہے ضمیر خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ کے لیے، وہ مذکر کی ضمیر ہے۔ بذات الصدور سینوں کی باتیں، اللہ یقیناً آسمان اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، اور وہ یقیناً اس کا علم رکھتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ تو اس میں دیکھ لیجئے ضمیر جو ہے انہو کی جو ضمیر ہے، یہ سوری کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو یہاں پہ میں نے آپ کے لیے ہائی لائٹ کیا ہے، صرف اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو ہم ضمائر سیکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 40 ہے، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ تو اس کا چھوٹا چھوٹا کر کے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، ہوا دیکھیں یہ ہوا، پھر یہاں ضمائر منفصلہ ہے، یہ آپ کو اب اس کا ترجمہ سمجھ آ جانا چاہیے، وہ، الذی جو، جعلکم تمہیں بنایا، اس نے تمہیں بنایا، خلائف جانشین، خلیفہ کی جمع ہے، تو ہوا کی ضمیر خدا کی طرف اشارہ کریے، فی الارض زمین میں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ فمن کفرا فعلیہ کفرو، فمن پس من جو، کفرا اس نے کفر کیا، یہ دیکھ لیں کہ یہ فعل ماضی ہے، فعلیہ دیکھیے یہاں پہ پھر ضمیر ہے، پس اس پر، ہی کا ترجمہ اس، فعلیہ پس اس پر، کفرہ اس کا کفر، ہو اس کا، پس جو انکار کرے اس کا انکار اسی پر پڑے گا،
वला यजीदुल काफिरीना कुफ्रुहुम इंद रब्बिहिम इल्ला मक़ता। देखें, व और ला नहीं, यजीदु वो बढ़ाता है, अल काफिरीना काफिर की जमा है, कुफ्रुहुम हम, फिर वो जमीर जो हमने अभी सीख ली है, कुफ्र कुफ्र, हम उनका, कुफ्रुहुम उनका कुफ्र, इंदा नजदीक, रब्बिहिम उनका रब, रब्बिहिम ये देख लीजिए यहाँ पे फिर जमायर हैं, इल्ला मक़ता मगर नाराजगी, और काफिरों को उनका कुफ्र उनके रब के नजदीक किसी चीज में नहीं बढ़ाता सवाए उसकी नाराजगी के। वला यजीदुल काफिरीना कुफ्रुहुम इल्ला खसारा। व और ला नहीं, यजीदु वो बढ़ाता है, अल काफिरीना ये काफिर की जमा है, कुफ्रुहुम कुफ्रुहुम कुफ्र हम उनका। तो ये जमायर हैं, इनको समझेंगे तो इसका तर्जुमा कसने में आसानी होगी। और हम से हमें पता चला कि यहाँ जमा का सीगा इस्तेमाल हो रहा है और मुजक्कर जमा का सीगा है, मुजक्कर गायब जमा का, इल्ला मगर खसारा नुकसान, और काफिरों को उनके कुफ्र घाटे के सिवा और किसी चीज, और काफिरों को उनका कुफ्र घाटे के सिवा और किसी चीज में नहीं बढ़ाता। आयत नंबर 41 है, कुल अरायतुम शुरकाअकुमुल लजीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माजा खलक़ू मिनल अर्दी अम लहुम शिरकुन फिस समावात अम आतैनाहुम किताबन फहुम अला बय्यिनतिम मिन बल इन यइदुज़ ज़ालिमूना बादुहुम बादन इल्ला गुरूरा। इस आयत को छोटा करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, कुल का मतलब है तो कह दे, और आई तुम, देखें यहाँ जमीर है, क्या तुमने देखा, शुरका अकुम, कुम ये जमीर जो है ये तुम और कुम, ये अगले सबक में पढ़ेंगे, शुरा का अकुम तुम्हारे शरीक, अल्लजीना वो लोग, तदऊना तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा। तो पूछ पूछ क्या तुमने अपने वो शरीक देखे हैं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। अरूनी माजा खलकू मिनल मिनल अर्दी अम लहुम शिरकुन फिस समावात। अरून क्या, अरूनी तुम मुझे दिखाओ, माजा क्या, खलकू उन्होंने पैदा किया, मिनल अर्दी जमीन से, अम या लहुम उनके लिए, शिरकुन शराकत, फिस समावात आसमान में, मुझे दिखाओ तो सही कि उन्होंने जमीन में से क्या पैदा किया या उनके लिए महज आसमानों में शराकत है। अम आतैनाहुम किताबन फहुम अला बय्यिनतिम मिन, अम या आतैनाहुम हमने उन्हें दी, किताबन किताब, फहुम यहाँ देखें जमीर है, बस वो, अला पर या ऊपर, बय्यिनात खुली दलील, मिनहू उसमें से, क्या हमने उनको कोई किताब दी है कि वो उसकी बयान करदा दलील अपने साथ रखते हैं। बल इन यईदु ज़ालिमून बादुहुम बादन इल्ला गुरूरा। बल बल्कि, इन नहीं, यईदु वो वादा करता है, अज़्ज़ालिमूना जुल्म करने वाले, बादुहुम हम की जमीर देखें यहाँ, उनमें से बाज, बादन बाज, इल्ला मगर, गुरूरा ये इसके बारे में हम जान चुके हैं कि धोखा देने वाला शैतान, धोखा इसका नहीं, बल्कि जालिमों में से उनके बाज बाज दूसरों से महज धोखे का वादा करते हैं। आखिरी आयत है आज की, इन्नल्लाहा युमसिकुस समावाति वल अर्दा अन तज़ूला वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादी इन्नहु काना हलीमन गफूरा। तो आयत का जो मुख्तसरन इसका जो लफ्जी तर्जुमा देख लीजिए कि इन्ना यकीनन अल्लाह, अल्लाह युमसिकु वो रोकता है, अस्समावात आसमान, वल अर्द और जमीन, अन तजूला कि वो दोनों टल जाएं, यकीनन अल्लाह आसमानों और जमीन को रोके हुए है कि वो टल सकें। वला इन जालता वला इन जालता इन अमसका हुमा मिन अहदिम मिन बादी, ये देखें हुमा की जो जमीर है वो आसमान और जमीन की बात हो रही है, तो हुमा की जमीर आई है। वला इन और अगर जालता वो दोनों टल गई, इन नहीं, अमसकु अमसकहुमा उसने उन दोनों को रोका था, मिन अहदिन कोई एक, मिन बादी उसके बाद, इन्नाहु काना हलीमन गफूरा यकीनन वो यानी खुदा, काना था, हलीमन बहुत बुर्दबार, गफूरा बहुत बख्शने वाला, यकीनन वो बड़ी समझ बूझ वाला, बहुत माफ करने वाला है। आज का लेसन हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं निहायत अदब से गुजारिश करूंगी अपनी टीचर साहिबा से कि वो आज का लेक्चर पेश करें।
السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا لیکچر سورہ فاتر کی آیت 12 سے ماخوذ ہے اور عنوان ہے تخلیق انسان کے مختلف مراحل از روئے قرآن کریم۔ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق مادی دنیا ایک طویل ارتقائی عمل سے گزری، جس میں کائنات کی تخلیق سے لے کر زمین پر زندگی کے ظہور تک کئی مراحل طے ہوئے۔ یہ ارتقاء اپنے عمل کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچا جہاں مادی دنیا اپنی مقصدیت اور حکمت کو ظاہر کرنے کے قابل ہوئی۔ اسی طرح روحانی دنیا کا ارتقائی سفر بھی جاری رہا، جس میں انسانیت کو مختلف ادوار میں انبیاء اور رہنماؤں کے ذریعے ہدایت ملی۔ یہ روحانی ترقی اپنے عروج پر پہنچی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے طور پر مبعوث فرمایا۔ ان کی تعلیمات نے دین کو مکمل کر دیا اور انسان کو روحانی کمال کے بلند ترین مقام تک پہنچنے کا موقع فراہم کیا۔ تعارف کے بعد ہم سورہ فاتر کی آیت 12 کو 4 مختلف ذیلی عنوانات کے تحت سمجھیں گے۔ تخلیق میں مٹی اور نطفے کا کردار، جوڑوں میں بنایا، انسانی زندگی کا دورانیہ اور قوا، اخلاقی اور روحانی ذمہ داریاں۔ تخلیق میں مٹی اور نطفے کا کردار۔ انسانی پیدائش کے متعلق قرآنی آیات کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ ہجر کی آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے سخت گرم ہوا کی آگ سے بنایا۔ انسانی زندگی کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن یعنی بیکٹیریا وغیرہ کو سموم یعنی ایسی آگ جس میں دھواں نہ ہو سے پیدا کیا۔ اس آگ سے مراد سورج کی وہ ڈائریکٹ شعائیں تھیں جو اس وقت یعنی کروڑوں اربوں سال پہلے اوزون کی طے نہ ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ زمین پہ پڑتی تھیں، اور ایک زبردست تابکاری کا عمل پیدا ہوتا تھا، جس کے نتیجے میں یہ بیکٹیریا پیدا ہوئے اور ان کو اپنی زندگی کا وجود قائم رکھنے کے لیے بھی توانائی کی ضرورت رہتی تھی۔ سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنوں کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الہام عقل علم اور سچائی میں لکھا ہے کہ ڈکرسن اور اوز سائنسدان جو ماہر حیاتیات ہیں، ان کی تحقیقات اس قرآنی موقف کی تائید کرتی ہیں، اور یہ بیکٹیریاز یقیناً انسانی پیدائش کے ابتدائی تخلیقی عمل میں معاون ثابت ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانی تخلیقی عمل کے پہلے مرحلے کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تم کو خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی ایک وقت انسان پر ایسا آیا کہ اس کا ذرہ حیات خشک مٹی میں ملا ہوا تھا۔ پھر سورہ سجدہ کی 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی جس نے ہر چیز کو جسے اس نے پیدا کیا بہت اچھا بنایا، اور اس نے انسان کی پیدائش کا آغاز گیلی مٹی سے کیا۔ یعنی خشک مٹی جس میں ذرہ حیات تھا، اس میں اس نے پانی ملایا اور ذرہ حیات کے نشو نما کے سامان پیدا کیے۔ پھر سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو گلے سڑے کیچڑ سے بنی ہوئی خشک کھنکتی ہوئی ٹھیکریوں سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے سخت گرم ہوا کی آگ سے بنایا۔ اور یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گلے سڑے کیچڑ سے بنی ہوئی خشک کھنکتی ہوئی ٹھیکریوں سے بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ یعنی تیسرے مرحلے میں وہ مٹی جس میں پانی ملا ہوا تھا، وہ ان بیکٹیریاز کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے، گلی سڑی شکل اختیار کر گیا،
फिर वो गला सड़ा मादा खुश्क होकर खनकती हुई ठेकरियों की शक्ल इख्तियार कर गया, जैसे आजकल के मिट्टी के बर्तन होते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नूह में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता, और अल्लाह ने तुम्हें जमीन से नबातात की तरह उगाया। हज़रत खलीफतुल मसीह राबी रहमुल्लाह इस आयत की तशरीह करते हुए लिखते हैं, ये महज मुहावरा नहीं बल्कि दर हकीकत इंसानी पैदाइश को एक ऐसे दौर में से गुजरना पड़ा है कि वो महज नबातात की सूरत में थी, और दूसरी आयत में इस मंजर को इस तरह पेश किया गया है कि लम यकुन शैअन मज़कूरा, यानी इंसान अपनी पैदाइश में ऐसी मंजिल से भी गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। इसमें लतीफ इशारा इस तरफ भी है कि जब इंसानी तख्लीक नबाताती दौर में से गुजर रही थी तो इसमें आवाज निकालने या आवाज सुनने के हवास पैदा ही नहीं हुए थे। इस नबाताती जिंदगी पर मुकम्मल खामोशी तारी थी। फिर अल्लाह ताला सूरह सजदा की 9वीं आयत में फरमाता है, फिर उसने इसकी नस्ल एक हकीर पानी के निचोड़ यानी नुत्फे से बनाई। गो इंसान ने मुख्तलिफ इर्तिकाई मराहिल तय करके मौजूदा इंसानी शक्ल इख्तियार की, और इसके बाद इंसानी पैदाइश का सिलसिला पानी मिले मिट्टी से नहीं बल्कि नुत्फे यानी मियाँ और बीवी के मिलाप से शुरू हुआ। अब हम अपनी दूसरी सब हेडिंग पे आते हैं, जोड़ों में बनाया। सूरह अद-दहर में अल्लाह ताला फरमाता है, और हर चीज में से हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया ताकि तुम नसीहत पकड़ो। गोया अल्लाह ने हर चीज को जोड़ों में पैदा किया है। हजरत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, जोड़े सिर्फ जानवरों की जिंदगी में ही नहीं पाए जाते बल्कि नबातात और हत्ता के बेजान चीजों में भी मौजूद हैं। रूहानी चीजों में भी जोड़े पाए जाते हैं, हत्ता के आसमान और जमीन भी एक जोड़ा बनाते हैं। जब तक आसमान से पानी न उतरे और सूरज जमीन को गर्मी और रोशनी न दे, कोई नबातात पैदा नहीं हो सकती। इसी तरह इंसानी रूह, जिसे जमीन से तशबीह दी गई है, अपनी मख्फी और फितरी कुव्वतों और सिफात के इजहार का मौका नहीं पा सकती जब तक कि वही का पानी उस पर नाजिल ना हो। तीसरी सब हेडिंग है हमारी, इंसानी जिंदगी का दौरानिया और कवा। इंसानी जिंदगी का दौरानिया और इसकी कुव्वतें भी अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के तहत हैं। इंसान की जिंदगी का एक दौरानिया मुकर्रर है, लेकिन ये किसी जबर या तकदीर के तहत नहीं होता, बल्कि ये कवानीन फितरत के मुताबिक है। बायोलॉजिकली इंसान तकरीबन 25 साल की उम्र से ही जिस्म में तोड़ फोड़ के आगाज के नतीजे में दरअसल बुढ़ापे में कदम रख चुका होता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक बुढ़ापे की असल वजह डीएनए में मौजूद टेलोमियर की लंबाई कम होना है। कुरान जिस किताब की बात करता है वो दर हकीकत कुदरत की किताब है, जिसमें हर कानून और हर हकीकत पहले से मौजूद है। आज के साइंसदान भी इस किताब कुदरत को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आज की सूरह फातिर की 12वीं आयत में है, और कोई मोमर इंसान बड़ी उम्र नहीं पाता और ना इसकी उम्र से कुछ कम किया जाता है, मगर वो एक किताब में मौजूद है। यकीनन ये बात अल्लाह पर आसान है। तो गालिबन यहाँ किताब से मुराद डीएनए और टेलोमियर ही है। यही साइंसी तहकीक हो रही है कि किस तरह टेलोमियर की लंबाई कम होने से रोका जा सके और यूं उम्र को कम से कम 120 से 150 साल तक बढ़ाया जा सके। अब चौथी सब हेडिंग पे आते हैं, यानी इखलाकी और रूहानी जिम्मेदारियां। जिस्मानी और रूहानी दोनों तरक्कियात के 6 मरातब तय करने के बाद इंसान एक जामे हालत तक पहुंचता है, जिसे कमाल या तकमील कहा जाता है।
اب ہم 6 مراتب کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، نطفہ، روحانی خشوع کا آغاز۔ نطفہ جسمانی وجود کا اول مرتبہ ہے، اور جب تک رحم کی کشش اس کی دستکاری نہ کرے وہ کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی حالت خشوع روحانی وجود کا اول مرتبہ ہے، اور جب تک رحیم خدا کی دستکاری نہ ہو وہ حالت خشوع کچھ بھی چیز نہیں۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، یاد الہی کی حالت میں روتے ہیں، وجد کرتے ہیں، مگر لغویات سے وہ کنارہ کشی نہیں کرتے، جس سے سمجھا جاتا ہے کہ کچھ بھی ان کو خدا سے تعلق نہیں اور خدا کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں۔ نمبر 2، اللہ کا، خدا سے تعلق۔ اللہ کا جسمانی وجود کا دوسرا مرتبہ ہے، اور جب اسے رحم مادر مل جاتا ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتا اور وہ کسی حد تک بچ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا مرتبہ روحانی وجود میں خدائے رحیم سے انسان کا تعلق بن جاتا ہے، اور وہ تمام لغو باتوں اور لغو تعلقات سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ نمبر 3، مضغہ، پاکیزگی اور سخاوت۔ تیسرا جسمانی درجہ مضغہ ہے، جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اپنے اندر پاک حالت پیدا کرتا ہے اور ایک حد تک سخت بھی ہو جاتا ہے۔ یہی حالت روحانی وجود کے تیسرے درجے کی ہے۔ جب مومن پہلی 2 حالتوں سے آگے بڑھتا ہے تو وہ صرف لغو باتوں سے ہی پرہیز نہیں کرتا، بلکہ بخل کی پلیدگی کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 4، عظام، ایمانی مضبوطی۔ چوتھے جسمانی درجے یعنی عظام یعنی ہڈیوں کے مرحلے میں مضغہ یعنی گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں کی شکل دی جاتی ہے۔ اس مرحلے میں رحم مادر یعنی یوٹرس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور جسمانی طور پر شدت اور صلابت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ روحانی وجود کے درجے میں بھی ایمانی شدت اور صلابت زیادہ اور خدائے رحیم سے تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ مومن اپنی نفسانی جذبات اور شہوات ممنوعہ سے بچتا ہے۔ نمبر 5، لحم، تقوی اور روحانی حسن۔ 5ویں درجے یعنی لحم یعنی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور یوں جسمانی بناوٹ میں کسی قدر خوبصورتی کی جھلک دیکھی جاتی ہے۔ یہ عجیب مطابقت ہے کہ روحانی طور پر اللہ نے تقوی کو لباس قرار دیا ہے، اور جیسا کہ انسان کی روح پر سے اگر تقوی کا لباس اتار لیا جائے تو روحانی بد شکلی اس کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ روحانی ترقی میں مومن حت الوسع خدا اور اس کی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہدوں کے ہر پہلو کا لحاظ رکھ کر تقوی کی باریک راہوں پر قدم بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے شرک نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، جھوٹی گواہی نہیں دیتا، اور اسلام اور اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ 6 درجہ، کمال، محبت الہیہ کا نزول، خلق آخر۔ 5ویں درجے میں مرتبہ حسن تقوی تو حاصل ہے، لیکن کمال اس حسن کا 6 درجے میں حاصل ہوتا ہے جب اللہ کی ذاتی محبت ایک روح کی طرح اس کے دل پر نازل ہوتی ہے، اور وہ روح اس کے تمام وجود روحانی کو روشنی اور زندگی بخشتے ہیں۔ غرض محبت سے بھری یاد الہی جس کا نام نماز ہے در حقیقت مومن کی غذا بن جاتی ہے، جس کے بغیر وہ جی ہی نہیں سکتا۔ اس میں ایسا آسمانی رنگ چڑھتا ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ، پاؤں اور زبان خدا تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں اور زبان بن جاتے ہیں۔ گویا یہ انسانی کمال کا وہ آخری نقطہ ہے جس پہ پہنچ کر خدائی صفات اس کے آئینے قلب پر منعکس ہونے لگتی ہے۔ 6 درجے جسمانی وجود میں روح اللہ کی طرف سے جسم پر فائز ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے وجود روحانی کے 6 مرتبے پر مومن صادق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔
अब गौर करने की ये बात है कि इंसानी पैदाइश कोई मामूली वजूद नहीं है। इंसान का जिस्मानी वजूद, इसका ज़हनी इर्तिका और इसकी रूहानी सलाहियतें सब इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह ताला ने उसे एक अजीम मकसद के तहत पैदा किया है। वो इस कायनात की अनमोल तरीन चीज़ है जिसकी अल्लाह ताला की बारगाह में खुसूसी कद्र मंजिलत है, और जो इसरार इलाहिया का अमीन और उसकी सिफात व कमालात का मज़हर है। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा, माशाल्लाह बहुत उम्दा, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं, आपकी तवज्जो के लिए इकलान करते चलें। G6 और तर्जमा कोर्स की आखिरी क्लास इंशाल्लाह बरोज़ सोमवार 24 फरवरी 2025 को मुनक्किद की जाएगी और मोहतरम हाफिज़ फजल रब्बी साहिब, सेक्रेटरी तालीमुल कुरान वक्फ़े आरज़ी यूके, हमारी इस क्लास में शिरकत फरमा होंगे। आप तमाम मुतल्लिमात से गुजारिश है कि अपनी हाज़िरी को इस क्लास में यकीनी बनाएं। इंशाल्लाह ताला क्लास की रिपोर्ट और आप मुतल्लिमात की क्लास में कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। फ़हमुल कुरान के हवाले से माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हमें आपकी तहरीरात मौसूल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो हमारा होमवर्क था वो सूरह फ़ातिर की आयत 30 से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरजूना तिजारतन लन तबूर, वो ऐसी तिजारत की उम्मीद लगाए हुए हैं जो कभी तबाह नहीं होगी। इसमें सवाल था कि तिजारत से क्या मुराद है, इसकी तशरीह करें। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे आप लोगों के जवाब मौसूल हुए और बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके, बहुत आप लोगों ने स्टडी करके जवाब अरसाल किए। और इस सेगमेंट का मकसद भी यही था कि सिर्फ तिलावत ना की जाए बल्कि तर्जुमा भी पढ़ें और सीखें और कुरान करीम के उलूम से फ़हम व अदराक हासिल करें। तो माशाल्लाह ये जिसकी तहरीर है ये है G60 179 और ये इतनी तफसील से माशाल्लाह लिखा है। ये है G60 279, G60 226, G60 157, G60 167। मैंने ये कुछ निशान लगाए थे कि मैं बीच में से कुछ ना कुछ पढ़ के बताऊंगी, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसलिए जस्ट मैं आप लोगों की आईडीज ही अनाउंस कर रही हूँ इस वक्त। G60 186, G60 184। ये कौसर परवीन साहिबा हैं। माशाल्लाह आपका हमें लेक्चर भी मौसूल हुआ था, लेकिन आपकी आईडी हमारे पास नहीं है और इस तरह फिर हम आपको सर्टिफिकेट अरसाल नहीं कर सकेंगे। अगर आप हमें अपनी ईमेल एड्रेस अरसाल कर दें तो हम आपको आईडी और विद सर्टिफिकेट अरसाल कर सकेंगे, लेकिन हमें आपका ईमेल एड्रेस दरकार होगा। आप बेशक टेलीग्राम ग्रुप में या मुझसे प्राइवेटली मुझे मैसेज करके अपना मुझे डिटेल ज़रूर सेंड कर दें। जज़ाकुमुल्लाह। ये भी माशाल्लाह बहुत उम्दा लिखा हुआ है। G60 295 माशाल्लाह, G60 064 माशाल्लाह, बहुत मेहनत से, बहुत स्टडी करके और बहुत उम्दा लिखा हुआ है। G60 060, G60 082, G60 265, G60 276। बहुत उम्दा लिखाई माशाल्लाह। G60 303 माशाल्लाह, G60 231, G60 175, G60 296, G60 225, G60 225 and G60 2028, G6910। ये उस्मा साहिबा का है। उस्मा साहिबा आपकी आईडी अभी तक आपको नहीं मिली, इंशाल्लाह हम आपकी आईडी आपके सर्टिफिकेट के साथ ही इरसाल कर देंगे। अब हम इसकी थोड़ी सी तफसील देख लेते हैं। वो ऐसी तिजारत की उम्मीद लगाए हुए हैं जो कभी तबाह नहीं होगी। तिजारत से क्या मुराद है? तिजारत तफसीर सगीर के हवाले से अगर देखें
تو حضور فرماتے ہیں یعنی وہ تجارت جو خدا تعالیٰ سے کی جاتی ہے، تجارتاً تجارت، اور لغوی معنی ہے کاروبار، خرید و فروخت، نفع کے حصول کے لیے کوئی کاروباری سرگرمی کرنا۔ اور قرآن مجید میں استعارہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جس میں ہے کہ نیک اعمال، روحانی تجارت، دنیا اور آخرت میں نفع۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جب تجارت کی جاتی ہے تو اس میں یقینی طور پر نفع اور کامیابی ملتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کو جب پہنچائے جاتے ہیں تو وہ نفع کی صورت میں آخرت میں بھی عظیم اجر ملتا ہے اور دنیا میں بھی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ تعالیٰ 20 فروری 2025 بروز جمعرات کو منعقد کی جائے گی، اور میں اب کلاس کے اختتام کے لیے ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک متعلمہ کو مائک دیں تاکہ وہ دعا پیش کر سکیں۔ جی السلام جی علیکم 6060 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرا ہی ایک بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے اور بندی کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ سراپا عدل و انصاف ہے۔ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر جو وہ تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا، تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کے لیے باعث کشادگی اور میری پریشانیوں سے دوری کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ آمین، اللہم آمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، بہت شکریہ۔ ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔